Hello, aspirants. Welcome back to another lecture. Now that we have studied a few classes on function, today we are going to start transcendental. Now, before we begin transcendental, we'll get to know some basics about transcendental. As we studied before function, we studied about sets, relation, what definition function is, and how to plot function, how to identify function. So that's what we are going to break in through transcendental. Once we'll break in, we'll settle down, then only we'll begin transcendental. So this video would be a smaller video on how to plot many things on number line, and we know the intricacies of transcendental functions. Okay, and then from the next video we'll go into deep, doing questions and knowing all the concepts. Very easy one, looks very difficult because of various other things, but it's very easy in fact. So let's begin. Okay, so transcendental function we are going to study now. See, as I've been mentioning many a times, that graph is an integral part of calculus. So from here, we'll get to know graph in a more detailed way. So in fact, there are 17 important graphs in the entire maths, out of which one we have studied linear by linear. There are 6 trigonometric graph that you would have studied. If you have not studied, don't worry, I'll make a separate videos on that. Okay. And now we'll get to know about transcendental function. What are their domain? What are their range? And so we'll start with trigonometric function first. Okay. So first we'll start with trigonometric function. And along with trigonometric function, we'll see ITF, inverse trigonometric function. Okay. Now we are reading ITF over here just as a topic, not as a chapter. As a chapter, we'll study once we have finished functions. Okay. So these are the domain and range for trigonometric functions. And below in blue, it is for inverse trigonometric function. You can see domain actually comes in pair. For sin x and cos x, the domain is same. For tan x and sec x, the domain is same. And the cos x and the cot x, the domain is the same. When we talk about range in trigonometric function, so again, for sin and cos, it's the same. For tan and cot, it's the same. For sec and cosec, it's the same. Okay. When we go into inverse, you will see जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेंज है वो डोमेन हो गया साइन का. अगेन जो रेंज है कॉस का वो डोमेन हो गया कॉस का इनवर्स में. ठीक है, बट दैट्स नॉट ट्रू अबाउट रेंज इन इनवर्स. इनवर्स में देखो साइन इनवर्स एक्स का -π/2 से π/2 है, बट कॉस इनवर्स एक्स का 0 से पाई ही है. ठीक है, और टैन का अलग है, सेक का, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. सो हम इसको फिर से दोबारा डिटेल में पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइमिंग वन शुड नो, यू शुड ऑलवेज राइट इट डाउन, कॉपी इट डाउन. ये आपको बार बार काम आएगा, और फिर मैं इन पे भी एक अलग वीडियो बना के भी बीच में डाल दूंगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपेंस, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ऑल. आई विल do a separate videos on all these as well. Okay, now other than that, the other thing is, see, up till now जो भी हमने नंबर लाइन बनाया ना, so नंबर लाइन पे हमने सिर्फ नंबर ही रिप्रेजेंट किया है ना. लाइक दिस इज 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना. बट इन एक्चुअल नंबर लाइन पे वी कैन ड्रॉ ऑन अ नंबर लाइन, वी कैन ड्रॉ और प्लॉट एंगल्स एज वेल. ठीक है, इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? वी वुड नीड रेडियन. इनफैक्ट रेडियन पूरी इंजीनियरिंग में, रेडियन, और इनफैक्ट कैलकुलस में तो बहुत ज्यादा, कैलकुलस में तो जितने भी आपको एंगल्स दिखेंगे किसी के भी, दैट इज ऑल इन रेडियन. जब आप इंटीग्रेशन भी पढ़ते हैं, जब आप डिफरेंशिएशन भी पढ़ते हैं, वो जो भी आपका साइन एक्स होता है ना, दैट इज इन रेडियन. ठीक है, डिग्री का एक अलग तरीके से ही डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन होता है. सो रेडियन इज वन सच, आई वुड से, यूनिट दैट इज यूज फॉर इंजीनियरिंग पर्पसेस. ठीक है, सो वी वुड टेक हेल्प ऑफ रेडियन. सो लेट्स से अगर मुझे प्लॉट करना है, लेट्स से आई हैव टू प्लॉट π/2. So pi is what? 3.14 by 2. So it is roughly around 1.57, which means it is roughly between 1 and 2. Similarly, pi ko if I have to plot, it is 3.14, which means it is roughly between 3 and 4. Okay. Now we need not to get exact. Nowhere we are supposed to get exact. Very rare. I have not come across any question wherein we need to be pinpoint, but rough assumptions, rough measurement would be good enough.
3 pi by 2, again pi by 2 is 1.57, so it is 3.3 into 1.57, which gives us around 4.5, है ना? So again it is between 4 and 5. 2 pi, 2 pi is what? Pi into 2, it is 6.28, so roughly between 6 and 7. और शायद ही आपको किसी क्वेश्चन में 2 pi के पार जाना पड़ेगा, ठीक है? शायद ही कभी अगर जाना पड़ा तो 5 pi by 2 तक जा सकते हैं, बट उसके बाद लगता नहीं है कि कभी जाना भी पड़ेगा. So if 5 pi by 2, so pi by 2 is 1.5, it would be 7.5 roughly, so it should be 7 and 8. So see, how are we going to do about it? देखो, okay, let's take this 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, ठीक है? Again, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, और यहाँ ले लेते हैं 6, 6, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now this is very important, so please pay attention to it. Okay, this is very, very important. You should know how to plot angles. If you know this, you can say most of the questions you can do it very easily. Otherwise, it's going to give you a lot of nightmares. So pi by 2 is somewhere between 1 and 2, 1.57. So I can say this is my pi by 2. ठीक है? Now pi by 2 के बाद क्या आएगा हमारा? पाई आएगा. पाई इज 3.14. सो देखो 2 और 3 के बीच में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? दिस इज पाई. 4 और 5 के बीच में क्या आएगा? पाई के बाद क्या आएगा हमारा? 3 pi by 2. 3 pi by 2 इज व्हाट? 4 और 5 के बीच में. सो दिस इज 3 pi by 2. अगेन 3 pi by 2 का 2 पाई. 2 पाई मतलब 6 पॉइंट समथिंग. देखो 6.28 आएगा, तो दिस वुड बी ओवर हियर. 5 और 6 के बीच में भी कुछ नहीं आएगा. 2 पाई. सिमिलरली आप यहाँ भी प्लॉट कर सकते हैं. -pi by 2, 2 और 3 के बीच में कुछ भी नहीं आएगा. -पाई, 4 और 5 के बीच में -3 pi by 2, और यहाँ कहीं 6 के बाद डाल दो -2 पाई. सो दिस इज हाउ यू प्लॉट. दिस इज हाउ यू प्लॉट. ओके, दिस इज लॉट ऑफ रेलिवेंस. आपको ये आना चाहिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आराम से बनते हैं. अगर आपको ये प्लॉटिंग आ गई, देन यू कैन डू लॉट ऑफ क्वेश्चन वेरी इजीली. ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई हमने कैसे किया. फिर से what we have done, we have converted angles into radians. So pi by 2 is what? Pi by 2 is roughly pi is 3.14 by 2, so it's 1.57. तो हमने यहाँ ले लिया. Similarly इसी बेसिस पे pi is 3.14, so 3 और 4 के बीच में ले लिया. 3 pi by 2 is what? Pi by 2 into 3, so it is somewhere between 4 and 5. 2 pi is what? 6.2, so 6 के बाद ले लिया. So this is a vague plotting, or you can say representation of angles on number line. ठीक है, ये बहुत जरूरी है. इसका फायदा क्या है अभी देखो आपको पता लगेगा. लेट्स टेक अ क्वेश्चन. जेई में आया क्वेश्चन है. इफ फाइंड डोमेन y इक्वल्स टू रूट साइन एक्स -16 - x². ठीक है, देखो डोमेन निकालना है. क्लियर कट है, हमें पता है क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए. 0. अच्छा, एक चीज और हमें यहाँ से सीखना पड़ेगा. ट्रांसीडेंटल में हम कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व नहीं करेंगे, हम एल्जेब्रिक को सॉल्व करेंगे. और हम ट्रिग्नोमेट्रिक को रिप्रेजेंट करके ग्राफ ग्रुप से नंबर लाइन वगैरह कहीं कहीं से कोई जुगाड़ करके आंसर लेंगे. इसको सॉल्व करना नहीं जानते, कोई छोटा मोटा है, इसको आप कर भी लोगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में भारी भारी भयानक भयानक भी आ सकता है. सो डोंट गो फॉर सॉल्विंग इट. ठीक है, जस्ट सॉल्व दिस पार्ट. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x-4, x+4 आएगा. अच्छा, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, x-4, x+4 आ गया. तो अगर हम इसमें से हम कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा ये हमारा? x-4, x+4, ये माइनस में था तो ये उल्टा हो जाएगा. तो ये हो जाएगा हमारा -4 से +4 के बीच में आ गया. हमारा x का वैल्यू आ गया. ठीक है, देखो अब क्या होगा. जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो हमने ग्राफ पूरे पे ही बनाएंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता हम जहां तक बनाए अपना. बट हम x की वैल्यूज कहां से कंसीडर करेंगे? 4 और 4 से, और साइन x की ग्राफ बनाएंगे. ठीक है, तो देखो साइन x की ग्राफ बनाते हैं. ठीक है, हमने -4 से 4 तक ग्राफ बनाना है. हमने ड्रॉ कर दिया. 1 2 3 4, -1, -2, -3, -4. ठीक है,
साइन एक्स का हमने ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स का हम एक मैक्सिमम, ये साइन एक्स का मिनिमम। तो y इक्वल्स टू वन, वाई इक्वल्स टू -1 साइन एक्स का हमने रेंज देख लिया है, इसलिए हमें रेंज और डोमेन पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो साइन का ग्राफ है, हमें पता है साइन 0 है 0, जिसका भी 0 से निकलेगा तो वो हम 0 से ओरिजिन से क्रॉस कराएंगे। ठीक है, सो देखो पहले इसके बीच में एंगल पुट कर देते हैं। तो दिस इज π/2, 2 और 3 के बीच में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, 3 और 4 के बीच में पाई। ठीक है, और 4 के बाद अगर आपने ड्रॉ करना है कुछ अपने तो यहाँ पे हो जाएगा 3π/2। सिमिलरली ये हो जाएगा आपको -π/2, -2 और -3 के बीच में कुछ भी नहीं होगा, ये हो जाएगा -π, और ये हो जाएगा आपको -3π/2। चलो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखो साइन, है ना, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। साइन π/2 पे 1 होगा वैल्यू, थोड़ा बड़ा हो गया। हाँ, साइन π/2 पे वैल्यू 1 होगा, और साइन -π/2 पे देखो -1 होगा वैल्यू π/2। उसके बाद क्या, π/2 के बाद साइन पाई, साइन पाई 0, हम 0 से निकाल दिए, साइन पाई पे देखो 0 हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, उसके बाद क्या, साइन 3π/2, साइन 3π/2 पे -1 होगा वैल्यू। ठीक है, ओके, नाउ इधर से चलते हैं। साइन -π/2 पे -1 होगा। ठीक है, फिर साइन पाई पे देखो 0 होगा, और साइन 3π/2 पे 1 होगा वैल्यू। तो इस तरह कुछ ग्राफ बनेगा। देखो ग्राफ आप कहीं से भी कहीं का बना लो, आप इसके आगे भी बना सकते हो, 4 5 6 भी बना सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने वैल्यू कहाँ से कहाँ कंसिडर करना है, आपने वैल्यू कंसिडर करना है -4 से 4 के बीच में, और वहां पे क्या होना चाहिए, साइन पॉजिटिव होना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक, -4 से 4 के बीच में साइन पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिस कि आप एक बाउंड्री बना लिया करो अपने लिए, -4 पे भी एक बाउंड्री बना लो, +4 पे भी एक बाउंड्री बना लो। अब यहाँ -4 से 4 के बीच में देखो कि कौन सी पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे साइन एक्स पॉजिटिव होगा। तो देखो एक यहाँ पे दिख रहा है क्लियर कट कि साइन आपकी पॉजिटिव है, यहाँ पे आपको पूरा साइन पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव मतलब नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, देखो यहाँ पे नेगेटिव है ना, इसलिए इस पॉइंट में नेगेटिव है, तो इधर नहीं जाना। जहां साइन पॉजिटिव है, कंडीशन देखो क्या है, साइन एक्स पॉजिटिव है, कहां से कहां तक, वेयर एक्स इज फ्रॉम -4 to 4। डोमेन हमारा -4 से 4 के बीच में है, और हमने साइन एक्स को देखना है पॉजिटिव। तो साइन एक्स कहां से कहां पॉजिटिव आ रहा है, साइन एक्स ये -4 से -π पे पॉजिटिव आ रहा है। देखो देखो -4 है ये, और ये कहाँ है, ये 0 है, 0 से लेके पाई तक पॉजिटिव आ रहा है ना। तो हमारा इसका आंसर हो गया, तभी मैंने आपको बोला था इसको सॉल्व नहीं करना। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया मेरा -4 से -π। अच्छा देखो, हमेशा इक्वालिटी की साइन है तो आप ब्रैकेट को इस तरह से लेंगे, अगर इक्वालिटी का नहीं होता तो आप ओपन ब्रैकेट ले लेते हैं। ठीक है, यूनियन 0 से पाई, देखो ये हो गया। तो ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ गया, ये हमारा आ गया आंसर। देखो 4 से 4 के बीच में हमने लिया, 4 से 4 के बीच। अच्छा, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि डाउट होगा कि हमने इस तरफ वाला 4 ऑप्शन क्यों नहीं लिया, यहाँ पे हमने क्यों नहीं लिया, 1 2 3 ये ऑप्शन हमारा 4 था, देखो हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिया, 1 2 3 ये 4 था। 4 हमने इसलिए नहीं लिया यहाँ पे, क्योंकि देखो जब तक ग्राफ 4 पे पहुंचेगा ना तब तक ग्राफ नेगेटिव हो जाएगा, ये पार्ट मेरा नेगेटिव है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, मैं दूसरे कलर से इसको मार्क कर रहा हूँ, ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, कि बाय द टाइम माई ग्राफ रिचेस 4 ना, इट टर्न्स नेगेटिव, दिस इज द नेगेटिव पोर्शन। ठीक है, सो वी हैव टू टेक एन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, एक्स का वैल्यू और साइन एक्स का। सो एक्स तो -4 से 4 पे है, बट साइन एक्स हैज टू बी पॉजिटिव बिटवीन दैट वैल्यू। तो साइन एक्स इज पॉजिटिव ओनली बिटवीन -4 to -π एंड बिटवीन 0 to π। ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव नॉट एक्सक्लूडेड दैट पोर्शन। ठीक है, तो नाउ इसी की कितना हेल्प कर रहा है, अगर आपको प्लॉटिंग आता है, नंबर लाइन पे एंगल प्लॉट करने आता है, तो वो कितना आसान हो जाएगा। चलो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, डोमेन निकालना है, ये आपको फंक्शन दिया गया है। तो डोमेन निकालने की कंडीशन अब तो आप लोगों को आना चाहिए, आप लोगों को चैंपियन हो जाना चाहिए, >0 और 16 - x² देखो ये होना चाहिए।
ठीक है ना। अभी बहुत सारे लोग को डाउट होगा कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हमने साइन एक्स में क्यों लिया। अगर साइन डिनोमिनेटर में है ना मेरे भाई, अगर हमने इसको इक्वल टू जीरो ले लिया तो एक केस आएगा विच इज 1/0, एंड 1/0 वुड नॉट गिव मी, क्योंकि देन इन्फिनिटी प्लस एनीथिंग वुड बी इन्फिनिटी इटसेल्फ। सो वैल्यू ऑफ एक्स वुड नॉट गिव मी a real value of y। याद करो फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन, दैट्स व्हाई वी हैव जस्ट टेकन, वी हैव नॉट टेकन इक्वल टू जीरो बट वी हैव टेकन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर अगेन, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को छेड़ो मत, उसको रहने दो, दूसरे को सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने पे वही आएगा हमने जो हमने पहले भी सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, सिंपल, अगर हमने यहाँ से सॉल्व करना है तो एक नंबर लाइन बना दो, तो आ जाएगा वैल्यू -4 और +4 आ जाएगा, है ना। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ साइन एक्स नहीं है, यहाँ पे साइन x-3 है, तो हमें x का वैल्यू निकाल के कोई फायदा नहीं है, हमें x-3 का वैल्यू निकालना चाहिए। ठीक है, तो x तो मेरा आ गया, बट यहाँ पे x-3 है, तो हम क्या करेंगे, -3 कर देते हैं, इनसाइड आउटसाइड लगाते हैं, -3 कर देते हैं, तो x जो है -7 से 1 के बीच में आ गया। ठीक है, और फॉर द टाइम बीइंग x चाहो तो तुम x-3 को, x-3 है, x-3 को थीटा मान लो तो और आसान हो जाता है, लिखने में सुंदर लगता है। x-थीटा जो है आपको -7 से 1 हो गया। ठीक है, ये हमारा, अब हमने जो ग्राफ बनाना है हमने इसके बीच में बनाना है। ठीक है, इससे अब आपको पता लगी गया होगा, तो ग्राफ बनाते चलो, ऐसा कुछ होगा हमारा। हमने कहाँ से कहाँ तक बनाना है, देखो -7 से लेके 1 तक बनाना है हमने, और जहाँ पे साइन क्या है ना, ये है, इसको हमने पूरा थीटा मान लिया है, तो साइन थीटा हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलो बनाते हैं, एंगल पहले प्लॉट कर लेते हैं। ये हो जाएगा π/2। ठीक है, इधर ये हो जाएगा -π/2। ठीक है, और -2 से 3 के बीच में कुछ बनता नहीं है, ये हो गया -π, ये हो गया -3π/2, -5 से -6 के बीच में कुछ बनेगा नहीं, ये हो जाएगा आपको -6 से 7 के बीच में -2π, और -7 के बाद अगर आपको बनाना है तो बना सकते हैं, -5π/2 होगा, -5π/2। चलो अब यहाँ से ग्राफ बनाते हैं, तो अगेन ये साइन के 1 हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा y=1 है, ये y=-1 है, इसका रेंज। ठीक है, सिमिलरली ये नीचे आएगा तो भी यहाँ हो गया। ठीक है, 1 की बात तो हमने इसमें जाना नहीं है। अच्छा, फिर ये इस तरह से जाएगा, साइन -π, ये आ जाएगा -3π/2 पे। ठीक है, इसको हम चाहे तो देखो हम कर्व टाइप से भी बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जस्ट ड्राइंग रफ, तो ये यहाँ आ गया, और -5π/2 पे ये -1 हो जाता है साइन। ठीक है, साइन का तो ऑल्टरनेटिव होता है। अब लेट्स फाइंड आउट, फिर से देखो, साइन π/2 इज 1, साइन -π/2 इज -1, साइन -π इज 0, साइन -3π/2 इज +1, साइन 2π इज 0, एंड साइन -5/2 इज -1। ठीक है, लेकिन हमने क्या बोला कि ग्राफ हमने बनाना पूरा ही है, बट वी हैव टू कंसीडर ग्राफ बिटवीन -7 to 1। ठीक है, तो एक हम -7 पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं अपने लिए, और एक हम ये ऐसा, और एक हम 1 पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसके बीच में हमने देखना है कि साइन कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, इसके बीच में हमने देखना है कि साइन कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है। तो देखो, साइन एक यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है आपको, और दूसरा पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। तो ये क्या इंटरवल है, ये तो मेरा 2π, देखो ये मेरा -2π से -π के बीच में दिख रहा है पॉजिटिव आपको, और दूसरा कहाँ से दिख रहा है, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो वी कैन राइट ओवर हियर कि -2π से लेके -π, और यूनियन में 0 से 1 दिख रहा है ना। एक हमारा ये आंसर है, और एक हमारा यहाँ पे थीटा के वैल्यू -7 से 1 है। अब हमें इन दोनों को कंबाइन करना है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू तो यहाँ पे x-3 है, थीटा की वैल्यू x-3 है, तो यहाँ से हमने x तक का रास्ता सफर करना है, तो ये बहुत आसान है, इनसाइड आउटसाइड लगा के आप लोग कर सकते हैं। -2π x-3 -π यूनियन 3 x-3 1। देखो, देखो, ठीक है, ओके। अभी देखो, हमने 3 माइनस करना है, तो सॉरी 3 ऐड करना है, 3 - 2π
3 ऐड करेंगे तो ये x हो जाएगा और ये 3 माइनस पाई हो जाएगा, यूनियन ये 3 हो जाएगा, 3 ऐड करने पे ये x हो जाएगा और ये 4 होगा। ठीक है, देखो। अच्छा, ये थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 और टू 1 पे आएगा ये। ठीक है, क्योंकि थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे इक्वल टू 1 है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास x का वैल्यू आ गया, राइटिंग इट समवेयर, इधर राइट लिखते हैं, x का वैल्यू आ गया 3 - 2 पाई, 3 - पाई यूनियन 3 से 4। अगेन देखो 4 के साथ ये साइन है, हमारा हमारा आंसर आ गया, दैट्स आवर आंसर। ठीक है, ये हमारा डोमेन आ गया, दैट्स व्हाट आवर डोमेन इज। अगेन देखो क्या हेल्प हुआ हमें, इफ वी नो टू प्लॉट इट, इट इज वेरी इजी फॉर अस टू डू दिस। इफ यू डू नॉट नो हाउ टू प्लॉट देन इट इज डिफिकल्ट। ठीक है, सो आई विल स्टॉप ओवर हियर इटसेल्फ, आज हम यहाँ रुकेंगे, सो दैट आई वांट यू गाइस टू सी कि ये कैसे हुआ है। इट इज लिटिल बिट न्यूअर कॉन्सेप्ट, मुझे नहीं पता है हाउ मच आर यू अवेयर ऑफ दिस थिंग। सो प्लीज गो थ्रू इट, सी हाउ यू कैन प्लॉट इट, how you can plot angles on a number line, and then try doing these questions, just do these questions, and just let me tell you once again कि देयर विल बी नथिंग ऐसा लेफ्ट बिहाइंड जो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा और जो जेई में आ सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब आप एग्जाम देके आएंगे देन यू विल नोटिस एंड यू विल रिमेंबर माय वर्ड्स कि एटलीस्ट 6 to 7 क्वेश्चन, मे बी 9 क्वेश्चन भी आज तक जो भी मैंने पढ़ाया है, तो दीज क्वेश्चन हैव कम, so you'll find these things as well in upcoming exams as well. So please go through this video. अगर आप कुछ और भी पढ़ रहे हैं तो that's well and good, but अगर आप कुछ और नहीं पढ़ पा रहे, if you are facing problems and if you can understand what I'm trying to tell you, I've been trying to teach you over here, so just revise these things and be well versed with these things only. I promise you, you will not be in a bad situation. You'll be, in fact, आपके जेई के आईटी जेई की प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा। अभी हम मैथ्स का कर रहे हैं, then one day we'll be doing physics as well and then chemistry as well. Okay, so I wish you all the best, and if you think you have added some values today, please go ahead and subscribe to our channel and spread it amongst other aspirants as well. Thank you for your time. Have a lovely day.